So this is our fourth lecture on the topic, that is chapter number 16, Semiconductor Devices of 12th Science of Maharashtra Board. In last lecture we have discussed the full wave rectifier, and before that we have discussed the half wave rectifier. In half wave rectifier we get the signal, or we get the rectified signal for only half wave, and for full wave rectifier we get the signal for full wave. The signal is pulsating signal. You remember that point. The signal is pulsating signal for full wave rectifier as well as for half wave rectifier. This thing you know very well. Now I am discussing the next concept, and the next concept is ripple. And what is ripple factor? Now look, if you consider a DC signal, so DC signal is generally represented by a straight line graph, you know very well. Suppose this is a DC signal of say 9 volt amplitude. 9 व्होल्टचा सप्लाय आपल्या जवळ आहे, DC सप्लाय म्हणजे बॅटरी, DC बॅटरी. त्याच्यामध्ये 9 व्होल्ट आपल्याला कॉन्स्टंट मिळतील आणि जाणारा करंट एकाच दिशेने असेल. द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द सेम डायरेक्शन थ्रू द लोड. नाउ लुक लाइक दिस. This is the 9 volt battery which is connected to this load, and current will pass through this load in this direction, means from positive to negative. Constant current will pass through the load and the voltage is 9 volt like this, constant 9 volt. Okay, now what I am doing, I am introducing a AC source in this circuit. So consider a very small amplitude AC source, say 0.2 volt. 0.2 volt amplitude चा AC source आपण या सर्किट मध्ये कनेक्ट केला. हे फक्त इमॅजिनेशन आहे हां, हे तुम्हाला समजण्यासाठी मी एक्झाम्पल देतोय. ओके, सो आय हॅव कनेक्टेड an AC signal in series with this DC signal. So what will happen? What will happen? The current flowing through this load resistance will remain same or changes. What will happen? Think about it. The current flowing through the resistance will changes. Why changes? Because this AC signal will flow current for some instant of time in this direction and for some instant of time in opposite direction. So that's why for some instant of time the current flowing through this load resistance increases, and for some instant of time the current flowing through the load resistance decreases. So what will happen for the voltage across the resistance? The voltage across the resistance will be, or it will change. If the current flowing through the resistance changes, then the voltage across the resistance changes. Now look, this is 9 volt battery and I am adding this 0.2 volts supply of AC on this DC source. So this will be like this. Okay, its amplitude is 0.2 volt. Means it is, this point is 8.8 and this point is 9.2. बरोबर आहे. If this line represents 9 volt and this signal is of amplitude 0.2 volt, then this point will be of 9.2 volt and this will be 8.8 volt. Okay, means the signal which we get across this load resistance will vary in between 9.2 volt and 8.8 volt. बघा, व्यवस्थित लक्ष ठेवा. जर हा AC सिग्नल आपण याच्यामध्ये ॲड केला तर AC काय करेल, काही इन्स्टंट ऑफ टाईमसाठी, एका सेकंदात 50 वेळा अल्टर होतो तो, बरोबर आहे, आपल्याला माहिती आहे. इट अल्टर्स 50 टाइम्स इन 1 सेकंड बिकॉज इट्स फ्रिक्वेन्सी इज 50 हर्ट्ज. फॉर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, सपोज दिस AC signal supplies the current in the same direction. So the total voltage across this resistance will be 9.2 volt. And for negative half cycle, this AC supplies current in opposite direction. So because of which, for negative half cycle,
the voltage across this resistance will be 8.8 volt. So that's why I am stating that, or I am making a particular point that because of this AC signal, the voltage across the resistance, the DC voltage across the resistance, बघा शब्दाकडे लक्ष द्या, the DC voltage across the resistance which was 9 volt is changing between 9.2 volt and 8.8 volt. It is fluctuating. बरोबर आहे, आता लक्ष द्या. त्या DC जो 9 व्होल्टचा फिक्स होता, the DC which was 9 volt fix now starts fluctuating between 9.2 and 8.8 volt. Why? Because of mixture of AC in it. याच्यामध्ये आपण AC मिक्स केल्यामुळे तो DC जो होता तो DC फ्लक्च्युएट होतोय. Now look at, and I am coming to the point. This AC factor or this AC component which is present in DC, the AC component which is present in DC, that component is called ripple. हा जो AC आपण मिक्स केला DC मध्ये, किंवा DC मध्ये जर AC मिक्स असेल तर जो AC मिक्स असतो किंवा AC चा जो कंपोनेंट मिक्स असतो त्या AC च्या कंपोनेंटला काय म्हणायचं, रिपल. ओके, सो रिपल इट इज कंपोनेंट ऑफ AC. in DC. Okay, ripple means component of AC which is present in DC. आता तुम्ही म्हणसाल, you will make some point or in some question may arise in your mind like this, DC मध्ये AC आला कुठून? ठीक आहे, तसं मी ऍड केलं होते, पण DC मध्ये AC आला कुठून? आता लक्ष ठेवा. The point is the output voltage of half wave rectifier is like this. For positive half cycle you get output, negative half cycle you will not get any output. For positive half cycle you are getting output, for negative half cycle you are not getting output. It is rectifier. What rectifier do? Rectifier converts AC into DC. Now tell me whether it is DC. DC म्हणजे असं कॉन्स्टंट व्होल्टेज असलं पाहिजे. The voltage should be constant. Whether this voltage is constant, it is changing, it is pulsating voltage. For some instant you are getting voltage, for some instant you are not getting any voltage. For some instant you are getting voltage, for some instant you are not getting voltage. Means you are getting pulsating voltage which is changing. कम ज़्यादा हो रहा वोल्टेज, और वोल्टेज अगर कम ज़्यादा हो रहा माने उस वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है, माने उस वोल्टेज में क्या है, उस वोल्टेज में AC मिक्स है. बराबर है. अब ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट. हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में भी AC मिक्स होता है, माने आउटपुट में रिपल होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में. देखो समझो ये सिग्नल 5 वोल्ट का है, तो ये AC सिग्नल कैसा वेरी करेंगे, और DC है रिपल, ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है वो कैसा वेरी करेगा, 0 से 5, 5 से 0, 0, 0 से 5, 5 से 0, 0, ऐसा वो वेरी करेगा. इसमें AC सिग्नल रहेगा 5 वोल्ट का. ओके, नाउ लो, अब मैं यहां पर लेता हूं फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट ऐसा रहता है. पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी अपने को आउटपुट मिलता है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी अपने को आउटपुट मिलता है. अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर का मिलने वाला वोल्टेज भी कैसा है, पल्सेटिंग ही है. बढ़ रहा कम हो रहा, बढ़ रहा कम हो रहा, बढ़ रहा कम हो रहा. नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी मिल रहा अपने को फुल वेव रेक्टिफायर में. अब ये जो बढ़ रहा कम हो रहा, बढ़ रहा कम हो रहा, इसका वेरिएशन अगर अपन निकाले तो इसका एवरेज कितना आएगा, 0 से 5, 5 से 0, 0 से 5, 5 से 0. पहला क्या था, 0 से 5, 5 से 0, बाद में 0, फिर 0 से 5, 5 से 0, बाद में 0. ये हाफ वेव में था. यहां पर क्या है, 0 से 5, 5 से 0, 0 से 5, 5 से 0, यानी कि इसका एवरेज आ गया 2.5 वोल्ट. और हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज क्या आएगा,
0 से 5 और बाद में 0, तो 2.5 से नीचे आएगा. ओके, नाउ लुक, because of full wave rectification, the variation in output voltage is somewhat less than the half wave rectifier. Okay, point you should remember, full wave rectifier मधलं आउटपुटचं व्होल्टेज हे कमी व्हॅरी होतं. It reduces by small factor or it changes by small factor in full wave rectifier, while in half wave rectifier it changes by large amount. So that's why we can say that in full wave rectifier ripple is small, and in half wave rectifier ripple is large. Okay, got it? Okay. सो हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल ज्यादा होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल कम होता है. अब पहला पॉइंट अपन ने क्लियर किया. व्हाट इज रिपल? रिपल इज एसी कंपोनेंट विच इज प्रेझेंट इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर. आता मी थोडंसं शब्द बदलवले. आय एम चेंजिंग माय वर्ड्स. व्हाट इज रिपल? रिपल इज एसी कंपोनेंट विच इज प्रेझेंट in the output of rectifier or output DC of the rectifier. ठीक है? Or you can say like this, the AC component present along with DC in the output of rectifier is called a ripple. ऐसे भी आप बता सकते हो. So statement or definition is like this, the AC component present along with DC, the AC component present along with DC in the output of rectifier, is called the ripple. ठीक है? रिपल फुल वेव रेक्टिफायर मध्ये कमी असतो आणि रिपल हाफ वेव रेक्टिफायर मध्ये जास्त असतो. रिपल फैक्टर क्या होता है इसके बारे में देखो. The definition is like this, the ratio of root mean square value of AC component की RMS value, root mean square value माने RMS value, to the value of DC component in the rectifier output is known as ripple factor. यानी कि AC जो वहां पर रहेगा, AC कंपोनेंट जो होगा उसकी आरएमएस वैल्यू और जो डीसी रहेगा और रेक्टिफायर के आउटपुट में उसकी वैल्यू, ये दोनों का रेशियो अगर अपन ने लिया तो अपने को क्या मिलता है? रिपल फैक्टर. डेफिनेशन बराबर याद रखो. डेफिनेशन तुम्हारे एग्जाम में पूछी जा सकती है. डेफिनेशन किताब में दी है. द डेफिनेशन इज लाइक दिस, द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो, किन किन का रेशियो है? तो इट इज द रेशियो ऑफ root mean square value of AC component, RMS value of AC component, to the value of DC component काय में की in the rectifier output is known as ripple factor. रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है उसमें का जो AC कंपोनेंट है उसकी RMS वैल्यू और रेक्टिफायर के आउटपुट में की जो DC वैल्यू है वो वैल्यू, इन दोनों का जो रेशियो आएगा उस रेशियो को क्या बोलते हैं? रिपल फैक्टर. द नेक्स्ट पॉइंट इज, वी हैव डिस्कस दैट इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर देयर इज प्रेजेंस ऑफ रिपल. प्रेजेंस ऑफ रिपल मीन्स प्रेजेंस ऑफ AC विथ DC और प्रेजेंस ऑफ AC कंपोनेंट विथ DC. नाउ these rectifiers are used as a source of power in daily life. जो अपन पावर सप्लाई बनाते हैं उसमें रेक्टिफायर यूज करते हैं. So these rectifiers are used to construct a power supply. Now look, if the rectifier is used to construct the power supply, then output of rectifier consists of DC as well as AC. Output of rectifier consists of DC as well as
AC, the ripple means AC. So what you have to do? You have to remove that AC from the DC. आपको वो DC में से वो AC निकालना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, और ये काम करता है फिल्टर. Filter is a circuit which removes AC from the DC. So, what are filters? These are the circuits which removes AC from DC. बात बराबर ध्यान में रखो. फिल्टर क्या है? फिल्टर इज अ सर्किट विच रिमूव्स AC फ्रॉम DC. अब ध्यान में रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई फिल्टर्स आर यूज इन पावर सप्लाई. पावर सप्लाई में इन फिल्टर का क्या काम है? जो पावर सप्लाई अपन बनाते हैं और जो पावर सप्लाई अपने को मार्केट में मिलते हैं, सभी पावर सप्लाई में रेक्टिफायर यूज होता है. नियरली एवरी पावर सप्लाई इज मेड अप ऑफ रेक्टिफायर. और रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा होता है? इन आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर देयर इज प्रेजेंस ऑफ AC इन एडिशन टू DC. DC के एडिशन में AC भी होता है. अगर ऐसा आउटपुट अपने को मिल रहा तो स्टेडी DC आउटपुट नहीं होगा. अपने को उसको स्टेडी DC बनाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को उस जो मिक्सचर है AC और DC का, उसमें से AC को निकाल बाहर फेंकना होगा. और वो काम करता है, कौन काम करता है? फिल्टर सर्किट. नाउ लुक, व्हाई फिल्टर्स आर यूज्ड इन पावर सप्लाई. पावर सप्लाईज आर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर and output of rectifier is the sum of AC as well as DC. To remove the AC from that DC, we require a filter circuit. So that's why in power supply we requires a filter. इसी वजह से पावर सप्लाई में अपने को फिल्टर लगता है, क्योंकि वहां पर अपन ने रेक्टिफायर का यूज किया है और रेक्टिफायर के आउटपुट में AC और DC दोनों मिक्स है. उसमें से AC अपने को निकाल फेंकने के लिए ये फिल्टर अपन यूज करते हैं. अब फिल्टर कौन सा होता है? तो फिल्टर अपन ने अपने को मालूम जो है वो है कैपेसिटर फिल्टर. कैपेसिटर फिल्टर कैसा काम करता है, किस तरह से वो DC में से AC को बाहर निकाल के फेंकता है, इस बारे में अपन अब डिस्कशन करेंगे. ठीक है, ध्यान में फिल्टर किसको बोलते हैं? फिल्टर ऐसा सर्किट है कि जो DC में से AC को बाजू करता है. पावर सप्लाई में अपने को फिल्टर क्यों लगता है? क्योंकि पावर सप्लाई बनाए जाते हैं रेक्टिफायर से, और रेक्टिफायर के आउटपुट में AC और DC दोनों रहते हैं. वो दोनों में से AC बाजू करने के लिए अपने को फिल्टर लगते हैं इन पावर सप्लाई. दोनों पॉइंट क्लियर हो गए. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कैपेसिटर फिल्टर, हाउ इट वर्क्स. बिफोर दैट सम पॉइंट यू शुड नो. सो व्हाट इज कैपेसिटर? It is a device which is used to store charge. ये अपने को पता है. अब ये जो कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर का सिंबल रहता है इस तरह से, टू पैरेलल लाइंस. ठीक है, इस कैपेसिटर को मैंने कनेक्ट कर लिया DC बैटरी के साथ. DC बैटरी इस कैपेसिटर में से करंट भेजेगी. ठीक है, ये करंट कैपेसिटर में से जाएगा, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होते जाएगा. द कैपेसिटर गेट चार्ज लाइक दिस. इट विल टेक सम टाइम टू गेट चार्ज कंप्लीटली. ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा. अब इसको डिस्चार्ज होने के लिए यहां पर कुछ नहीं है. समझो मैंने यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो ये जो फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है ये क्या करेगा? ये डिस्चार्ज होगा इस लोड रेजिस्टेंस में से, माने ये करंट इधर से भेजेगा. ये डिस्चार्ज होगा और उसका वोल्टेज 0 हो जाएगा. फिर से इधर से वो सिग्नल चार्ज लेगा, फिर से चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा,
चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। माने इस कैपेसिटर का जो वेवफॉर्म रहेगा और जो वेवफॉर्म बनेगा वो मैं यहां पर निकालता हूं। ये मैंने बड़ा निकाल दिया थोड़ा। देखो, कैपेसिटर गेट चार्ज होने को उसको थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ये इंटरवल थोड़ा ज्यादा दिख रहा है आपको। कैपेसिटर गेट डिस्चार्ज, देखो डिस्चार्ज का इंटरवल छोटा है, चार्जिंग का इंटरवल ज्यादा है, डिस्चार्जिंग का इंटरवल छोटा है। फिर से वो चार्ज होगा, सॉरी ना, फिर से वो चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, फिर से चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, इस तरह से। ओके, कैपेसिटर को अगर अपन ने डायरेक्ट सिग्नल दिया यानी कि डीसी सिग्नल दिया और उसके अक्रॉस अगर अपन ने लोड रेजिस्टेंस लगाया तो उसका चार्जिंग होगा और डिस्चार्जिंग थ्रू लोड रेजिस्टेंस होगा। और जो डिस्चार्जिंग रहेगा वो इस तरह से रहेगा, उसका वेवफॉर्म ऐसा बनेगा, आउटपुट का वोल्टेज ऐसा अपने को मिलेगा। खाली कैपेसिटर अपन ने लगाया तो डीसी, प्योर डीसी को। हाँ, नाउ लो, अपन यहां पर लगा रहे हैं रेक्टिफायर। समझो फुल वेव रेक्टिफायर अपन यहां पर कनेक्ट कर दिया। फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा होता है? फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट होता है इस तरह से। पॉजिटिव ऑफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलता है, नेगेटिव ऑफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलता है, पॉजिटिव ऑफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलता है, नेगेटिव ऑफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलता है। इस तरह से आउटपुट वोल्टेज अपने को मिलेगा, बराबर है। नाउ लुक, यानी कि रेक्टिफायर का आउटपुट में ये पल्सेटिंग वोल्टेज है, बराबर है। इसमें एसी और डीसी दोनों मिक्स है। इस रेक्टिफायर को मैंने ये कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर और ये लोड कनेक्ट कर दिया, लोड रेजिस्टेंस। अब देखो क्या होगा, ये जो चेंज होने वाला वोल्टेज है वो इस कैपेसिटर को मिलेगा। चेंज होने वाला वोल्टेज कैपेसिटर को मिलेगा तो देखो ये कैपेसिटर का चार्जिंग आपको सामने है। चेंज होने वाला वोल्टेज कैपेसिटर को मिलेगा, वो वोल्टेज ऐसा रहेगा। देखो कैपेसिटर चार्ज हो रहा, बराबर है। ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा, वोल्टेज यहां तक आ गया। यहां पर वोल्टेज नहीं मिल रहा कैपेसिटर को, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, फिर से चार्ज होगा, फिर से चार्ज होगा यहां तक, फिर से डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा। अपने को मिलने वाला वोल्टेज इस तरह से मिलेगा। देखो रेक्टिफायर का वोल्टेज कैसा फ्लक्चुएट हो रहा था, इतना फ्लक्चुएट हो रहा था। कैपेसिटर लगाने के बाद उस वोल्टेज का फ्लक्चुएशन देखो कैसा हो रहा, कम हो रहा। ये डार्क ब्लैक लाइन दिखा रहा आपको कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन कम हो गया, यानी कि जो ज्यादा रिपल उसमें प्रेजेंट था उसको कम करने का काम किसने किया? इस कैपेसिटर ने। मींस दिस कैपेसिटर इज यूज्ड टू रिमूव एसी फ्रॉम दैट डीसी। डीसी में से एसी को सेपरेट करने के वास्ते इस कैपेसिटर का यूज अपन ने किया। एंड एज इट इज यूज्ड टू सेपरेट एसी फ्रॉम डीसी, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैपेसिटर फिल्टर। इसकी सर्किट डायग्राम इस तरह से आप निकाल सकते हो। यहां पर मिलने वाला वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज यहां पर मिलेगा अपने को लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो इस तरह से रहेगा, उसका वेरिएशन कम रहेगा, माने कि उसमें का एसी अपन ने कम कर दिया। ठीक है, पॉइंट बराबर ध्यान में रखो। कैपेसिटर लगाने की वजह से वहां पर एसी जो ज्यादा था डीसी में मिक्स हुआ था, वो एसी को अपन ने सेपरेट कर डाला और अपने को प्योर डीसी, वहां पर प्योर डीसी नहीं मिलता लेकिन प्योर फॉर्म में यानी कि थोड़ा सा चेंज होने वाला डीसी मिलता है, एग्जैक्ट प्योर डीसी नहीं मिलता। ओके, ठीक है। सो दैट्स व्हाई फिल्टर सर्किट आर यूज्ड इन पावर सप्लाई टू reduce the AC component of DC from the DC. Okay.
ये था पूरा फिल्टर और कैपेसिटर एज अ फिल्टर का वर्किंग. नाउ द नोट्स ऑफ टुडेज लेक्चर. द फर्स्ट पॉइंट इज रिपल. क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द टर्म रिपल. रिपल क्या होता है? द एसी कंपोनेंट प्रेजेंट अलॉन्ग विथ डीसी इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर. रेक्टिफायर के आउटपुट में डीसी के साथ में जो एसी होता है, इट इज कॉल्ड द रिपल. दिस रिपल इज अनडिजायरेबल. ये रिपल नहीं होना वहाँ पर, लेकिन होता है. इट इज अनडिजायरेबल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्चुएशन इन द रेक्टिफायर आउटपुट. इस एसी की वजह से रेक्टिफायर का आउटपुट कम ज़्यादा होता है. देयर इज फ्लक्चुएशन इन द रेक्टिफायर आउटपुट. स्मॉल रिपल प्रेजेंट स्टेडी डीसी आउटपुट. अगर रिपल कम होगा तो अपने को स्टेडी डीसी आउटपुट मिलेगा. सो दैट द रिपल मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. अगर रिपल कम रहेगा तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन कम होगा, और वोल्टेज में फ्लक्चुएशन कम होगा तो अपने को स्टेडी डीसी वोल्टेज मिलेगा. सो दैट्स वाई द रिपल मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. अब आपको यहाँ पर एक फिगर बताई है, देखो ये डीसी वोल्टेज बताया. इस डीसी के ऊपर ये एसी माउंट किया हुआ दिखता है आपको, ये एसी सिग्नल वहाँ पर, यानी कि इसको बोलता है रिपल वोल्टेज. ये जो एसी वोल्टेज है रिपल वोल्टेज है, और डीसी के ऊपर उसको माउंट किया. तो क्या दिख रहा है अपने को? जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा. माने कि उस सिग्नल में कि जिसमें एसी और डीसी दोनों मिक्स है, आपको स्टेडी डीसी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा फ्लक्चुएटिंग डीसी. ओके, so this shows that if ripple in output of rectifier is small, then it is more effective. अगर रिपल कम होगा तो मिलने वाला डीसी प्योर डीसी रहेगा और इट विल बी मोर इफेक्टिव. उसके बाद में अपन ने सेकंड पॉइंट देखा था, रिपल फैक्टर क्या होता है? द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ एसी इन एडिशन विद डीसी. The ratio of root mean square value of the AC component to the value of the DC component in the rectifier output is known as ripple factor. ये definition है, ये आपको याद करने की है, फॉर्मूला भी याद करना है. ठीक है, definition आप याद कर सकते हो, बार बार बताने का कुछ मतलब नहीं है, आप उसको याद कर लो. के बाद में अपन ने डिस्कस किया था फिल्टर्स क्या होते हैं एंड व्हाई फिल्टर्स आर यूज इन अ पावर सप्लाई. देखो, द पावर सप्लाई आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रेक्टिफायर्स. रेक्टिफायर का यूज़ करके अपन पावर सप्लाई बनाते हैं. द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस एंड इट इज़ नॉट स्टेडी. जो आउटपुट होता है रेक्टिफायर का वो कम ज़्यादा होता है, पल्सेस के फॉर्म में रहता है वो, और स्टेडी नहीं रहता. द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर कीप्स फ्लक्चुएटिंग ड्यू टू द रिपल कंपोनेंट प्रेजेंट इन इट. उसमें रिपल होता है रेक्टिफायर के आउटपुट में, इसलिए वो कम ज़्यादा होता है. अ फिल्टर इज अ सर्किट. अ फिल्टर क्या होता है? अ फिल्टर इज अ सर्किट विच रिमूव्स एसी कंपोनेंट फ्रॉम डीसी. डीसी में से एसी हटाने का काम ये फिल्टर करता है. सो बाय यूजिंग फिल्टर वी कैन गेट प्योर डीसी सिग्नल. सो फिल्टर का अगर अपन ने यूज़ करे कि इसके आउटपुट में, तो अपने को प्योर डीसी मिल सकता है. द पावर सप्लाई in the power supply, if a filter is used, then the steady DC signal can be obtained. So filters are used in power supply. पावर सप्लाई में अपन फिल्टर क्यों यूज़ कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा आपको 2 मार्क के लिए, तो उसका आंसर इस तरह से आपको लिखना है. उसके बाद में कैपेसिटर फिल्टर कैसा काम करता है, इस बारे में अपन ने अभी डिस्कशन किया. तो देखो क्या है, तो अ फिल्टर इज अ सर्किट विच रिमूव्स एसी कंपोनेंट फ्रॉम द डीसी, अपने को पता है. The output of rectifier keeps fluctuating due to ripple component present in it. रेक्टिफायर के आउटपुट में रिपल होता है, इसलिए उसका आउटपुट वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, फ्लक्चुएट होता है. मीन्स इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर देयर इज मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी. एसी और डीसी दोनों मिक्स होते हैं. व्हेन सच पल्सेटिंग आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर, ऐसा फ्लक्चुएट होने वाला पल्सेटिंग वोल्टेज अगर अपन ने कैपेसिटर के अक्रॉस लगाया तो क्या होगा? द कैपेसिटर गेट चार्ज टू द पीक वोल्टेज वीपी एज शोन. सामने फिगर निकाली है, वो वीपी तक यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तो वो चार्ज हो जाएगा.
व्हेन रेक्टिफायर वोल्टेज बिगिंस टू डिक्रीज, रेक्टिफायर का वोल्टेज कम भी होगा ज़्यादा भी होगा, जब वो कम होने लगेगा तो कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। द कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। अब एक ग्राफ देखो, ये वीपी है कैपेसिटर का मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज, और ये जो दिख रहे हैं अपने को ये है फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, अब यहाँ पर उसको सिग्नल नहीं मिल रहा तो डिस्चार्ज होने का प्रयास करेगा। वो अगर डिस्चार्ज होने का प्रयास करेगा तभी उसको वोल्टेज मिलेगा, फिर से चार्ज होगा, फिर से यहाँ पर वोल्टेज कम होगा तो डिस्चार्ज होने का काम करेगा, फिर से वोल्टेज मिलेगा तो चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा। देखो आप, ये जो रेक्टिफायर का आउटपुट था वो ऐसा फ्लक्चुएट हो रहा था, इतना वेरिएशन उसमें था, लेकिन कैपेसिटर लगाने के बाद उसका वेरिएशन कितना है, खाली इतना से, थोड़ा सा वेरिएशन उसमें है। आई बात आपके ध्यान में कि फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में इतना बड़ा वेरिएशन है, ये कैपेसिटर फिल्टर लगाने के बाद वो जो वेरिएशन है वो कितना हो गया, थोड़ा सा रह गया बीच में, यानी कि अपने को स्टेडी डीसी मिल रहा। ठीक है, स्टेडी डीसी वोल्टेज अपने को मिल रहे। ये क्या 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 लिखना पड़ता उसमें, द आउटपुट अक्रॉस लोड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एट द सेम टाइम द नेक्स्ट पल्स एट द, ये देखो ये डिस्चार्ज हो रहा कैपेसिटर, एट द सेम टाइम द नेक्स्ट पल्स recharges the capacitor and output voltage which was slightly decreases now becomes VP। ये जो थोड़ा सा कम हो गया था फिर से VP बन गया, फिर से वो डिस्चार्ज होने का काम करेगा, फिर से उसको वोल्टेज मिलेगा, फिर से VP बनेगा। This cycle goes on repeating because of which the fluctuation in the output neutralizes and we get nearly steady DC voltage, not steady DC voltage, steady DC voltage we will get. So because of the capacitor filter you are getting steady DC voltage, nearly steady DC voltage। ये देखो रेक्टिफायर के आउटपुट में अपन ने कैपेसिटर लगाया, ये कैपेसिटर किस तरह से काम करेगा, तो कैपेसिटर चार्ज होगा वीपी इतने वोल्टेज तक, उसके बाद में वो डिस्चार्ज होने का प्रयास करेगा, लेकिन डिस्चार्ज होते वक्त ही उसे क्या मिलेगा, फिर से वोल्टेज मिलेगा, फिर से वो चार्ज होगा वीपी तक, फिर से वो डिस्चार्ज होने का प्रयास करेगा, फिर से उसको वोल्टेज मिलेगा, वो फिर से वीपी तक आ जाएगा, फिर से वो वोल्टेज कम करने का प्रयास करेगा, डिस्चार्ज होने का काम करेगा, फिर से उसको वोल्टेज मिलेगा, फिर से चार्ज होगा। यानी कि जो अपने को यहाँ पर मिलने वाला वोल्टेज है वो कैसा मिलेगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वोल्टेज में रहेगा। सो दैट्स वाई कैपेसिटर इज यूज एज अ फिल्टर। फिल्टर माने क्या, फिल्टर होता है ऐसा सर्किट कि जो डीसी में से एसी को निकाल बाहर फेंकता है। सो दैट्स वाई कैपेसिटर इज कॉल्ड एज अ फिल्टर। ठीक है, इन दिस वे कैपेसिटर कैन बी यूज एज अ फिल्टर।